Hi, so we'll be doing computational mathematics unit 1 today. This is going to be a small video, approximately a video of 20 minutes maximum, and in 20 minutes we'll be covering all the topics which are important for the first unit. Okay, so the first thing that we'll be doing in this unit is Taylor series. What is Taylor series? Supposedly there's a point A and we have to find out the value of the function at that given point. Then we use Taylor's formula. The Taylor's formula is this, which is given to you here. Yeah, so this is Taylor's formula and this goes till infinity, and if it ends at a power n, at order n, that is known as Taylor's polynomial. And supposedly we are finding the value of the function at a point A. If that A is equal to 0, that is the origin is 0 comma 0, then that special formula which will be generated, it will be known as Maclaurin series. So Maclaurin series is nothing but a version of Taylor series where the value of A is equal to 0. And then you can see some of the useful results that we derive by using Taylor's formula and Maclaurin series. And I will be providing all the notes to you in the description, so it will be easily accessible and you can go through all the notes all together. Yes, so after that we have two things, that is supposedly a function is continuous in the interval a comma b closed, and then the other condition is that the function should be differentiable in the criteria of in the interval a comma b, but the brackets are open. It might not be continuous at the edges. Okay, so it takes us to two more points, that is there are two cases. F of a can be equal to f of b and the other case is equal to f of a is not equal to f of b, right? So when f of a is equal to f of b, so there will be a c point between them, such that f dash c, the derivative at that point, is 0. This is known as Rolle's theorem. And the other theorem, that is Lagrange's mean value theorem, says that the same two conditions, that function should be continuous in a comma b and function must be differential in a comma b open brackets, but f of a is not equal to f of b, and if it is not equal, then there will lie a point c such that the derivative of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. After that we have supposedly 7 types of errors. The 7 errors are known as, I'm going to repeat the errors for you: inherent error, round off error, chopping error, truncation error, absolute error, relative error, and percentage error. So let's know a little about what are the errors. Okay, what is error? Sabse pehle, the error is the value that cannot exactly be computed unless the true solution of the function exists. Okay, so going on to the all the levels one by one. What is inherent error? Inherent error is the error that already exists, that is given to you in the question. Supposedly this is the value and this has already been round off to 3 significant digits, something like that. If it is given in the question, if you know that there is an error already, that is an inherent error. Then the other error we talk about is rounding off. Rounding off, we all know that supposedly हमें 3 digit तक round off करना है, then we are going to see that हमारा उसका जो next digit it is lesser than 5 or it is greater or more than 5, greater or equal than 5, right? Then we have chopping of error. Chopping of error is basically cutting of the digits, like seeing the example here, 1.24681, right? So it's that it is round off to 1.25 because the digit after the 4 is greater than 5, whereas in the chopping error we will literally ignore all the digits after 4. So this is the difference between round off and chopping error. What is truncation error? Supposedly we read about the series above, right? The Taylor series and the Maclaurin series. So if there is a error in the true value and in the series, that error is known as truncation error. Then we have 3 errors which are related to each other, that is absolute error. What is absolute error? The value that we have computed and the value that is the true solution. If we subtract that and take the mod of the value, that is the absolute error. If we divide that by the original value, that is the relative error, and if we multiply it with 100, then it is known as the percentage error. Yes, so after that we have three methods to find out the root of the function. What are the 3 methods? Bisection method, Newton-Raphson method, and secant method. So now we are going to do a little bit of difference between all the 3 methods. So the first is bisection method. Bisection method is based upon the repeated application of IVP. What is IVP? Intermediate value property. What does intermediate value property says? It says that if your fx is continuous in the interval, the हमने किया था ना rules में, yes, so if fx is continuous in the interval of a comma b close brackets, and
f of a into f of b is lesser than 0, that is the sign of f of a is opposite sign of f of b. Supposedly f of a पॉजिटिव है तो f of b मेरा नेगेटिव होगा. अगर ऐसा है then fx is equal to 0 has at least one root in a comma b. मतलब a और b को तो हटा देते हैं, ठीक है. अंडर दैट इंटरवल देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट वन रूट, ठीक है. और वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फर्स्ट रूट x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ठीक है. अब जो मेरे x1 की वैल्यू आएगी, ठीक है, उस x1 को मैं यूज़ करके एक fx1 निकालूंगी, ठीक है. x1 को यूज़ करके फंक्शन में पुट करके एक वैल्यू निकालूंगी. अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरा f ऑफ a भी पॉजिटिव था, है ना, और मेरा f ऑफ b नेगेटिव था. अब f of x1 और f of b की have different signs, right? If now they have different signs, so that means my root will lie in that interval and I'm going to ignore the interval that happened from a to x1. Is that understandable? Okay, let me explain you with this thing that I have written. If f of x1 is 0, अगर डायरेक्टली मैंने x1 निकाला और f of x1 मेरा सीधा 0 आ जाता है, तो आई कैन डायरेक्टली से कि मेरा x1 ही रूट है, मेरा मिड पॉइंट ही रूट था, ठीक है. बट अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज़ नॉट इट, देन चेक द साइन ऑफ एफ ए एफ बी एफ x1 जैसे अभी हमने देखा, और जिसके ऑपोजिट साइंस होंगे उसके अंदर हम इंटरवल लेंगे, उन दोनों का मिडल निकालेंगे और फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक मेरा जो रूट है वो सेम नहीं आ जाता. For all the three topics of finding the root, we are going to find out the conversions of the conversions of the methods as well. For example, the जो भी हम कर रहे हैं that is bisection method, उसकी convergence is linear. That is हम step by step करते हैं ना, एक step फिर other step then other step, and सब में हम एक ही solution कर रहे हैं, half निकाल रहे हैं. So उसकी जो convergence है that is linear. It follows a straight line. Then the other method that we come to is Newton-Raphson method. What is Newton-Raphson method? Newton-Raphson method is method of tangents. It uses tangents का formula, ठीक है, and find out the next root. For example, if we know the xn root, for example हमें एक root पता है, ठीक है, मुझे उसकी next root निकालनी है. What is possible root? ठीक है, so xn plus 1 will be equal to xn minus fxn upon f dash xn, that is the actual root minus the function of the root upon the derivative of the actual root. Okay, if that makes sense, this is the formula you can see. And how is it derived? It is derived by this thing, fx0 plus h into f dash x0 is equal to 0. इधर से हम h निकाल लेते हैं, हमें पता है कि जो नेक्स्ट है वो h इज द हमारा स्टेप साइज, तो हमारे x नॉट के बाद वाला जो होगा वो प्लस h होगा उससे, सो वी डायरेक्टली एडेड टू द, इससे हमारा आ जाता है न्यूटन-रैफसन का. इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द रूट. सो इसकी जो कन्वर्जन्स वी नो इज क्वाड्रेटिक, that is to the power of 2. So it is very fast. Okay, so the third method we are going to talk about is secant method. Secant method क्या करता है? वो एक फंक्शन लेता है, फंक्शन के थ्रू एक secant लाइन ड्रॉ करता है. 2 पॉइंट कटे, x1 आ गया और x नॉट आ गया. सपोज x0 और x1 मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए जो भी उस रूट में कटा, ठीक है. अब सिंस आई गॉट दैट पॉइंट, अब मैं क्या करूँगी? आई एम गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला सेज xn plus 1 is equal to xn minus xn minus 1 upon f xn minus f of xn minus 1 into f of xn. I know it sounds a little complex, but it is very easy once you go through all the three formulas. I think any other method that we did previously to find out the roots, these three methods are one of the easiest methods that I know. ओके, सो बस इसमें एक कंडीशन होती है, मेरा n जो है, मतलब मेरे को 2 रूट्स ऑलरेडी पता होनी चाहिए तभी मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगी. लाइक अगर मुझे सिर्फ एक रूट पता है तो मैं सीकेंड नहीं लगा सकती, राइट. एंड इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1.6. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर लीनियर कन्वर्जेंस. जैसे हमने लीनियर पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, तो 1.6 इज नोन एज सुपर लीनियर. एंड इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इज 1.61803. ओके, दैट इज ऑल्सो न गोल्डन रेशियो, जो हमें आगे जाके पता लगेगा कि व्हाट इज गोल्डन रेशियो. Okay, so after this we are going to find out the method of how to we minimize a function. Okay, maximize भी कर सकते हैं इससे, but the direct method we are doing, जिससे हम अभी देख रहे हैं, that is minimization. minimize करने के लिए function को या maximize करने के लिए there are 3 methods. ठीक है, यहाँ पे भी 3 methods हैं. फिबोनाची मेथड, फिबोनाची सर्च मेथड, ठीक है, फिर दूसरा इज गोल्डन सर्च मेथड, एंड माई थर्ड इज न्यूटन मेथड. हमने ऊपर न्यूटन-रैफसन करा था, ये न्यूटन है, so there is a difference. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड. बिफोर स्टार्टिंग हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक यूनी मॉडल फंक्शन होता है, एक नॉन यूनी मॉडल होता है. यूनी मॉडल फंक्शन वो होता है जिसका एक मैक्सिमा या एक मिनिमा होता है, एज वी कैन सी हियर. नॉन यूनी मॉडल हैज़ मल्टीपल लोकल मैक्सिमस एंड मिनिमास. हम जो फंक्शन के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोज आर यूनी मॉडल फंक्शंस.
ठीक है। सो फर्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज़ हमारा फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर क्या होता है, एक बार मैं सीरीज़ लिखती हूँ उसकी, शायद पता चल जाए आपको। द सीरीज साज 0 1, ठीक है। सबसे पहले दो नंबर होते हैं मेरे 0 और 1, ठीक है। फिर आता है मेरा 0 + 1 दैट इज़ अगेन 1। फिर आता है 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13 एंड इट गोज़ ऑन एंड गोज़ फोर्थ, ठीक है। ये होते हैं मेरे फिबोनाची नंबर। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ, सिंस मैं जो नंबर निकाल रही हूँ उसके पहले वाले दो का सम ले रही हूँ, सो आई राइट इट एज fn = fn - 1 + fn - 2, that is मेरा फिबोनाची नंबर। एंड इफ आई कंटिन्यूसली गो ऑन टू दिस, दैट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। अब सपोजिटली मुझे कोई भी एक फिबोनाची नंबर गिवन है, ठीक है, तो मुझसे इसकी n की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब सिंस मेरे को ना मेन जो इस चीज़ में इस मेथड में चाहिए, दैट इज़ मेरा n इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आई नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली मिनिमाइज कैसे होगा फंक्शन, किस पॉइंट पे होगा और उस मिनिमाइज फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टू मिनिमाइज अ कॉन्टिन्यूस यूनिमॉडल फंक्शन x बिलोंगिंग टू a, b, मतलब ये फिबोनाची हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हम मैक्सिमाइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, बट दिस इज हम अभी मिनिमाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने लिख दिया n मस्ट बी नोन। अब हम इसमें करते क्या हैं, वी डिवाइड द इनिशियली a, b इक्वली इंटू fn सब इंटरवल्स, ठीक है। हम उसको उतने n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं एंड हेंस द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल की लेंथ आती है दैट इज b - a अपॉन fn, ठीक है। अब इस b - a को मैं L0 भी कहती हूँ, दैट इज़ मेरी इनिशियल लेंथ, ठीक है, L0। और जो मैं अभी निकाल रही हूँ सब इंटरवल की लेंथ, दैट इज़ Ln। सो L0 = Ln = L0 अपॉन Fn। तो इससे क्या होगा, जैसे मेरा n बढ़ता रहेगा ना तो मेरा Fn बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मेरा लेंथ जो है वो कम होती रहेगी, जितनी लेंथ कम होती रहेगी उतनी ईजिली मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, उतनी क्लोज उसके आ जाएगा, राइट। सो दीज आर ऐसे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, मैंने इनको एक रेड बॉक्स में डाल दिया है, सो यू कैन नो दैट यू कैन यूज़ दीज फॉर्मूलाज, जो भी आपको इनिशियली क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन यूज़ दीज फॉर्मूलाज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n वेरी इजीली। मतलब अगर आपको fn पता लग जाएगा, सपोज मुझे पता लग गया कि fn की वैल्यू इज़ 13, ठीक है। fn की वैल्यू 13 है का मतलब समझते हो, मेरी 13 की वैल्यू कब आती है, फर्स्ट 1 इज़ माई फर्स्ट फिबोनाची नंबर, अनदर 1 इज़ सेकेंड, ठीक है। फिर आता है मेरा 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13 किस पे आया, 7 नंबर पे आया, तो मेरे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ऐसे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो अब इसके बाद हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस मेथड, हम एक टेबल बनाते हैं। द टेबल कंपोजेज ऑफ k क्या होता है, मेरे n की वैल्यू, n मतलब सपोज मेरा n 7 आया, 7 के बाद में 6 5 4 3 2, मैं 2 तक जाऊँगी। 2 तक क्यों जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है, माई नेक्स्ट कॉलम से f of k - 2 अपॉन f of k, मतलब अगर मेरा n 7 है तो मैं f of 5 अपॉन f of 7 करूँगी, ठीक है। और अब खुद सोचो, अगर मैं f of 0 से कम तो नहीं जा सकती ना, तो मेरा k मिनिमम 2 हो सकता है, तो मेरा वो 2 तक जाता है, ठीक है। फिर आता है a और b। ए और बी में क्या होता है, जो इनिशियली मेरे पास इंटरवल्स गिवन है वो ए और बी के फर्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे। x1 को करूँगी मैं a + डेल्टा, a + डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, जो हमने रेशियो निकाली f of k - 2 अपॉन f of k इंटू b - a, दैट इज़ मेरा L0, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाली डेल्टा की वैल्यू, x1 में ऐड कर दी, x2 में b से माइनस कर दी। अब मेरे पास x1 और x2 आ गए, इससे मैंने f of x1 निकाला और f of x2 निकाला। फिर देखा कि मिनिमम कौन सा है, f of x1 या f of x2, जिसकी वैल्यू छोटी है उसको मैंने ले लिया। सपोज x1 वाले की वैल्यू छोटी थी, f of x1 छोटा था, ठीक है। अगर x1 छोटा है दैट मीन्स मेरे को रिप्लेस, मतलब अपने x1 को रिटेन करना है, मुझे अपने x1 को अपने पास रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो छोटा है, मुझे छोटी वैल्यू के इसमें जाना है, क्योंकि मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, राइट। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ b विद x2 एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x2 विद x1। इससे क्या होगा, मेरा जो x1 है वो b के पास रिटेन हो, x2 के पास रिटेन हो जाएगा एंड आई कैन फर्दर यूज इट इन f of x1 एंड f of x2। ऐसे ही अगर सेकेंडरी केस, अगर मेरा x2 मिनिमम है तो मैं क्या करूँगी, मैं a को x1 से रिप्लेस कर दूँगी और x1 को x2 से रिप्लेस कर दूँगी, तो इससे क्या होगा, मेरा x2 रिटेन हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो फाइनल इंटरवल आएगा उसमें मैं चेक करूँगी कि वो एरर से कम होना चाहिए, 2 × डेल्टा इज शुड बी लेस देन एरर, ठीक है। और जो मेरे a और b की उस टाइम x1 और x2 की वैल्यू आएगी उस टाइम पे, उसका मैं
एवरेज निकाल के एक्स कैप निकाल लूँगी. इस एक्स कैप को मैं कहूँगी कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर माई फंक्शन इज़ मिनिमम एंड व्हाट इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, वो मैं एफ ऑफ x1 x से कैलकुलेट कर लूँगी, एफ ऑफ एक्स गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज़ मेरा फिबोनाची सर्च मेथड. अगर मेरे को सेकेंड मेथड पे जाना है, गोल्डन सर्च मेथड, तो बिल्कुल सेम होता है, इसमें भी टेबल ही बनती है. पर हमने सिंस यहाँ पे देखा था फिबोनाची में क्या हुआ था, हमारी जो रेशियो है एफ ऑफ के माइनस टू एफ ऑफ के, ये हमारे के पे डिपेंड करती थी, राइट. वेयर एज जो हम गोल्डन सर्च मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हमारी रेशियो एक ही रहती है, वो आर ही हमारी रेशियो रहेगी, वॉट एवर सो एवर, ठीक है. और उस आर को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है. उसकी वैल्यू होती है 0.6103, ठीक है. इसको हम एज अ रेशियो यूज़ करते हैं. वही हमारा डेल्टा क्या होता है, बस यहाँ पे आर बन जाता है. यहाँ पे हमारा डेल्टा था एफ ऑफ के माइनस टू अपॉन एफ ऑफ के इंटू बी माइनस ए. यहाँ पे हमारा आर बन जाता है, तो हम आर को डायरेक्टली बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सेम प्रोसीजर को गो थ्रू करते हैं. एक्स हमारे पास x1 और x2 ऐसे आ जाते हैं जो एरर से कम होते हैं. हम दोनों को माइनस करके देखते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, अपॉन टू करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं और हम फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू वहाँ से निकल जाती है हमारी, ठीक है. एक और मेथड आता है न्यूटन्स मेथड फॉर मिनिमाइजेशन. इसका फॉर्मूला पढ़ लेना चाहिए, बट मोस्टली इससे क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि मिनिमाइजेशन के लिए वो आपको टेबल ही देंगे. बट ओके, दिस सेज कि नेक्स्ट रूट करने के लिए हम रूट को छोटा करते जाते हैं, है ना. तो रादर देन मेकिंग द होल टेबल, हम इसमें न्यूटन वाला मेथड जो वो स्लोप मेथड यूज़ करता था, यहाँ पे भी हम वो करते हैं, बट यहाँ पे हमारा डबल डेरिवेटिव यूज़ होता है. सो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ डैश एक्सएन अपॉन एफ डबल डैश एक्सएन. इसके थ्रू भी हम मल्टीपल x निकाल सकते हैं और फिर मिनिमाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आता है हमारा, ये तो हमने किया कि हमने एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को हमने मिनिमाइज कर दिया. अगर मेरे फंक्शन में मल्टी वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या करूँगी, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू यूज़ एक मेथड जिसे कहते हैं स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड. इस स्टीपेस्ट डिसेंट वाले मेथड को कहते हैं हम कॉशी मेथड भी कहते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, अगर हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है तो हम उसे पी नॉट ले लेंगे, बट अगर वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई इनिशियल पॉइंट नहीं गिवन हमें, तो हम 0,0 दैट इज़ हमारा ओरिजिन, उससे हम पी नॉट ले लेते हैं, ठीक है. फिर हम निकालते हैं एस नॉट. एस नॉट क्या होता है हमारा, बेसिकली द स्लोप, द डायरेक्शन, राइट. तो उसको हम कहेंगे माइनस डेल्टा एफ नॉट. एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ पी नॉट, है ना, उस फंक्शन का पी नॉट पे वैल्यू, माइनस डेल्टा एफ ऑफ पी नॉट. अब ये डेल्टा एफ क्या है, पी नॉट तो हमें पता है कि मेरा इनिशियल पॉइंट है. डेल्टा एफ क्या है, डेल्टा एफ इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है. उस मैट्रिक्स की वैल्यू इज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x1 और उसकी लाइक इट इज़ अ 2x1 मैट्रिक्स जिसमें डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x2. ऐसे हमारे एक और मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में काम आता है, दैट इज हेसेंस मैट्रिक्स. हेसेंस मैट्रिक्स क्या कहता है, वो एक 2x2 का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मेरा आएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x1 का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x1 डेल x2, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x2 डेल x1, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x2 का होल स्क्वायर. ये मेरा हेसेन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है. इसके बाद हम कैलकुलेट कर लिया, हमने एस नॉट निकाल लिया था, ठीक है. अब हम एक लगाते हैं लैम्डा नॉट. ये लैम्डा नॉट इंटू एस नॉट हमारा एक वो रेशियो होता है, एक पॉइंट होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं ओरिजिन में इसे ऐड करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है. तो अब देन कैलकुलेट करूँगी मैं लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट क्या होता है, एस नॉट का ट्रांसपोज इंटू एस नॉट अपॉन एस नॉट का ट्रांसपोर्ट इंटू हेसेंस मैट्रिक्स इंटू एस नॉट. एस नॉट मैंने कैलकुलेट कर लिया था माइनस डेल्टा एफ पी नॉट करके, डेल्टा नॉट आ गया मेरे पास. तो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो निकालूंगी P1, वो ऐसा निकालूंगी कि P नॉट प्लस डेल्टा नॉट एस नॉट, P नॉट प्लस डेल्टा नॉट एस नॉट. और ये मैं तब तक करती रहूँगी, लाइक मैंने P1 निकाला, फिर मैं P2 निकालूंगी, P3, तो मैं Pn तब तक निकालूंगी जब तक वो उसका जो मैट्रिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल 0 के इक्वल ना हो जाए. जैसे ही वो 0 के इक्वल आ जाएगा समवेयर सम अराउंड, तो मैं कह दूँगी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है. इज़ दैट अंडरस्टैंडेबल? अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक्स. इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक वैल्यू गिवन है, सपोज लेट्स से डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है. डेसिमल से अगर मुझे उसे मशीन रिप्रेजेंटेशन करना है, व्हाट इज़ मशीन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि सिंगल बिट में लेके आना है, डबल बिट में लेके आना है, तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है. तो इसके दो वो होते हैं, जैसे भी मैंने मेंशन किया, दैट इज़ सिंगल बिट एंड डबल बिट, ठीक है. सिंगल बिट क्या होता है, सिंगल बिट इज़ बेसिकली सिंगल बिट तो नहीं, सिंगल क्या होता है, सिंगल इज़ 32 बिट्स का, ठीक है. एंड डबल क्या होता है, 64 बिट का, जैसे हमारी मशीन चलती है, ठीक है. 32 बिट्स की है, 64 बिट्स की टाइप. तो इसमें क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है उसका साइन क्या है
वो 1 बिट लेता है, उसका एक्सपोनेंट क्या है वो 8 बिट्स लेता है, उसका मैंटिसा क्या है वो 23 बिट्स लेता है। अगर इसको सबको ऐड करते हो तो 32 बन जाता है। और एक आता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पे वैल्यू अलग होती है। ये हमें टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट अब करने वाले हैं, हाँ मतलब ठीक है, बेसिकली हमें टेबल याद होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स डू इट बाय क्वेश्चन। ठीक है, सपोज अब मेरे पास एक नंबर है जो डेसिमल नंबर है -52.234375। इसको मुझे मशीन में रिप्रेजेंट करना है। अभी हम सिर्फ सिंगल से करेंगे, डबल आप खुद ट्राई करना है एक बार। ठीक है, अब कैसे करेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को अलग लेंगे। इंटीजर पार्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसका रिमाइंडर लिखते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने 52/2 करा, 26 आया तो रिमाइंडर आ गया 0। 26/2 करा, क्वेश्चन 13 आया, रिमाइंडर आ गया 0। फिर किया 13 को 2 से डिवाइड तो 6 आया, बट रिमाइंडर आ गया 1। अब ये सिंस मैं तब तक करूँगी जब तक मेरा रिमाइंडर जब तक मेरा जो क्वेश्चन है वो 0 नहीं बन जाता। एज सुन एज माई क्वेश्चन इज 0, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे से लेके ऊपर तक मेरे जो वैल्यूज़ आई हैं, दैट इज़ 1 1 0 1 0 0, इसको मैं एक जगह लिख दूँगी। फिर मैं फ्रैक्शन वाले पार्ट पे जाऊँगी, तो फ्रैक्शन पे क्या होगा, मैं जो मेरे पास डेसिमल के बाद के नंबर है मैं उसको इंटू 2 करती रहूँगी, सच दैट कि मेरा जो डेसिमल को अगर मैं इंटू 2 करूँ और 1 आ जाए, अगर 1 नहीं आ रहा, वो रिकर्सिव आ रहा है, तो उसको रिकर्सिव पे स्टॉप कर दो, बट आई विल ट्राई कि वो 1 आ जाए। ठीक है, और जैसे हमने इंटीजर पार्ट में नीचे से ऊपर गए थे, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, अब मैं ऊपर से नीचे आई, आई स्टोर द वैल्यू। ठीक है, और मैंने उसको ऐसे लिख दिया, देन आई जॉइन देम, क्योंकि था तो वो जॉइंट नंबर ही ना, मैंने उसको जॉइन करा और लिख दिया। अब मेरे पास जो बाइनरी नंबर आया, इसको मैं नॉर्मलाइज़ करती हूँ। नॉर्मलाइज़ कैसे करती हूँ, मतलब जो पूरा नंबर आया 1 1 0 1 0 0 पॉइंट समथिंग, मैं इस पॉइंट को फर्स्ट 1 के बाद ले आती हूँ, मतलब 1 पॉइंट समथिंग बनाना है मुझे इसमें सपोजिटली। ठीक है, तो मैंने जो डेसिमल है उसको 1 2 3 4 5 जगह पे शिफ्ट किया। ठीक है, अब 5 से शिफ्ट किया तो मेरी जो एन की वैल्यू हो गई वो 5 हो गई। तो मैं अब नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, 110100.00111, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.1010 एंड सो ऑन इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि मेरे एन की पावर 5 थी। अब मैं इसके 3 पार्ट्स निकालती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है नंबर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स इसकी साइन बिट जो है वो 1 है। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में मैं क्या करती हूँ, जो मेरे एक्सपोनेंट की वैल्यू थी 127 टेबल में, उसमें मैं उस n की वैल्यू जो भी मैंने नॉर्मलाइज करके निकाली है उसको ऐड कर देती हूँ, और जो भी आता है, सपोज यहाँ पे 132 आया, इसको मैं 8 बिट्स में कैलकुलेट कर लेती हूँ। 132 को 8 बिट्स में कैसे लिखेंगे, वैसे मैंने लिख दिया एंड रख लिया। फिर आता है मैंटिसा। मैंटिसा क्या होता है, जो मैंने ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग निकाला था ना, है ना, उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको मैं मैंटिसा कहती हूँ, आफ्टर 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हमें बस ये आ गया। अब मैं इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगी मैं, साइन प्लस एक्सपोनेंट प्लस मैंटिसा। साइन क्या था, नेगेटिव, तो 1 आ गया। एक्सपोनेंट की वैल्यू मैंने 132 निकाली थी, जिसको मैंने 8 बिट्स में लिखा, वो लिख दिया। फिर मैंने मैंटिसा जो निकाला था 23 बिट्स का, उसको लिख दिया। अब मैं पीछे से लेके आगे तक 4 4 के ग्रुप्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसे हेक्साडेसिमल में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 4 4 4 4 के ग्रुप बनाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आई हेक्साडेसिमल में वो लिख दिया। This is how I change the value into the machine code. Okay, so this ends our chapter and I took approximately 23 minutes. I hope that it was understandable. Thanks for watching. Okay, bye-bye.